آدم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ یہ زمین بالکل ویران تھی، نہ انسان، نہ شہر، نہ آبادیاں، صرف ایک ہی مخلوق یہاں آباد تھی، جنات۔ جنات کے قبیلے زمین کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے۔ مگر ان کے درمیان ہمیشہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور خوارج جاری رہتے تھے۔ پوری زمین میدان جنگ بن چکی تھی۔ یہ منظر حال جب اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین کو اس فساد سے پاک کیا جائے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا اور وہ بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں زمین پر اتر آئے اور جنات پر زبردست حملہ کیا۔ جنات نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر اللہ کے حکم کے سامنے وہ بے بس تھے۔ اس حملے میں بے شمار جنات ہلاک ہوئے اور جو بچ گئے وہ پہاڑوں، جنگلوں اور دور دراز جزیرے میں چھپ گئے۔ انہی جنات میں ایک نہایت نیک اور عبادت گزار جن تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل باقی جنات سے مختلف تھا، وہ فساد سے بالکل الگ رہتا اور دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ جب فرشتے جنات کے خلاف آئے تو عزازیل نے کھل کر فرشتوں کا ساتھ دیا۔ فرشتے اس کی عبادت اور اخلاص سے بہت متاثر ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو فرشتوں نے اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے آسمانوں پر لے جایا۔ اب عزازیل فرشتوں کی محفلوں میں رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ اس کا علم اور عبادت میں مقام بڑھتا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ مگر اسی دوران اس کے دل میں ایک خاموش خواہش نے جگہ بنانی شروع کر دی۔ کاش زمین کی خلافت مجھے عطا ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہوا، ایسا اعلان جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تمام مخلوقات میں ہلچل مچ گئی۔ سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ زمین پر اللہ کا نائب کون ہوگا؟ فرشتے زمین پر پہلے جنات کے فساد کو دیکھ چکے تھے، لہذا انہوں نے حیرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے عرض کیا، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ہم تو ہر وقت تیرے تسبیح گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوسری طرف عزازیل نے یہ اعلان سنتے ہی خوشی منائی۔ وہ خود بہت پر اعتماد تھا کہ اللہ کے ہاں اس کا جو مقام ہے، اسی بنا پر اس زمین کی خلافت اسی کو ملنی چاہیے۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جس کا ذکر قصے میں آیا، کو حکم دیا کہ زمین کے مختلف علاقوں سے مٹی جمع کرے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پہاڑوں، میدانوں، ریگستانوں اور خشک زمینوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کی۔ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی، کسی جگہ نرم، کسی جگہ سخت۔ ان مٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق کی تخلیق کا حکم دیا، انسان۔ جب پہلے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اسے آدم کا نام رکھا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور یوں انسانیت کی ابتدا ہو گئی۔ تمام مخلوقات کی نظریاں حضرت آدم علیہ السلام پر جمی رہ گئیں کہ ان میں کیا خاص بات ہے، وہ کیسے سب سے مختلف ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص علم عطا کرنا شروع کیا، ایسا علم جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، نہ فرشتوں کو نہ جنات کو۔ اب اس علم کے متعلق امتحان کا مرحلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔
फरिश्ते किसी सवाल का जवाब न दे सके, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए। अब फरिश्तों पर वाज़े हो गया कि इंसान उनसे बहुत बरतर है। उन्होंने अर्ज किया, या अल्लाह, हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है। बेशक तो यही इल्म वाला, हिकमत वाला है। फिर वो दिन आया जब जमीन की खिलाफत का फैसला किया जाना था। मजलिस में तमाम फरिश्ते और अज़ाज़ील भी मौजूद थे। अज़ाज़ील के दिल में इंसान के खिलाफ हसद की चिंगारी भड़क रही थी, मगर वो अपनी इबादत पर बहुत नाज़ा था और सोच रहा था कि आदम तो मिट्टी से बना है और मैं आग से पैदा हुआ हूं, मैं ही अल्लाह के नजदीक अफजल हूं। उसने समझा खिलाफत तो मुझे ही मिलेगी। और फिर अल्लाह ताला ने फैसला सुना दिया, जमीन पर उसका खलीफा इंसान होगा। अज़ाज़ील पर यह खबर बजली बनकर गिरी। वो शोक में चला गया। उसकी आंखें गम और गुस्से की वजह से सुर्ख हो गईं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम फरिश्तों और अज़ाज़ील को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। अल्लाह के हुक्म के साथ ही तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, सिवाय अज़ाज़ील के। किसी की हिम्मत न थी कि अल्लाह के हुक्म से इनकार करे, मगर वो बदबख्त गर्दन झुकाने से इनकार कर बैठा। गुस्से और तकब्बुर के साथ खड़ा रहा। दरबार खुदाई में सन्नाटा छा गया। अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा न करे? अब उसने, जो बाद में इब्लीस कहलाया, तकब्बुर से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल यहां से, तुझे ये हक नहीं कि यहां तक करूं। बेशक तू जलीलों में से नहीं, बल्कि जलील नहीं, बल्कि जलील है। यूं अज़ाज़ील अब इब्लीस बन चुका था, मरदूद और शैतान। मगर बजाय शर्मिंदा होने या तौबा करने के, उसने अल्लाह ताला से एक हैरान कुन दरखास्त की, मुझे कयामत तक मोहलत दे दे। जिस दिन इंसानों को कब्रों से उठाया जाए जा, तुझे मोहलत दी गई। अब इब्लीस ने एक और ऐलान किया, जो एक चैलेंज और साजिश थी। उसने कहा कि इसके बाद वो इंसानों को गुमराह करने की कसम खाता है। वो उनके सामने पुश्त, दाएं, बाएं, हर तरफ हमला करेगा और इंसानों में से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा, तू जलील व मरदूद होकर चला जा, और जो भी तेरी पैरवी करेगा वो भी तेरा शरीक होगा, और मैं तुम सबको जहन्नुम से भर दूंगा। यूं इब्लीस निहायत जिल्लत के साथ बारगाह खुदा से निकल गया, गुस्से और इंतकाम की आग में जलता हुआ। इसे सबसे ज्यादा गुस्सा इंसान पर था, जिस वजह से वो अल्लाह की मजलिस से निकाला जा चुका था। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का असल इम्तिहान शुरू होने वाला था, इंसान और शैतान का मुकाबला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। वहां हर तरह की नेमतें थीं, मगर फिर भी वो अकेला महसूस करते थे, तन्हाई का एहसास होता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनकी ज़ौजा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। वो उनकी हमअशरी बनी। अब हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहां से चाहो खाओ पियो, खुशी से रहो, मगर एक दरख्त के नजदीक न जाओ, वरना तुम जालिमों में से होगे। जन्नत में हर तरफ नेमतें थीं, सुकून था, राहत थी। सिर्फ एक दरख्त था जिसके नजदीक जाने से मना किया गया था, मगर शैतान, जो पहले ही जन्नत से निकाला जा चुका था, आदम और हव्वा से हसद और बुग़्ज़ में जल रहा था। वो चाहता था कि आदम और हव्वा भी अल्लाह की नाफरमानी करें, ताकि वो भी उसकी तरह जन्नत से निकाले जाएं। लिहाजा वो चुपके चुपके आया और आदम और हव्वा के दिलों में वसवसे डालने लगा। उसने उनसे कहा, तुम्हें जन्नत के हर दरख्त का फल खाने की इजाजत है, मगर क्या तुमने कभी सोचा कि इस एक दरख्त से क्यों रोका गया?
आखिर इसका सबब क्या है? फिर उसने झूठ बोला और कहा, तुम्हें रोका गया यही इसलिए है कि अगर तुमने इस दरख्त का फल खा लिया तो तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें कभी मौत ना आएगी। ये दरख्त शजरे खुल्द है, यानी हमेशा की जिंदगी देने वाला दरख्त। इब्लीस ने बड़ी नजाकत, चालाकी और झूठी कस्मों के साथ जाहिर किया कि वो उनका खैर खा है। वो बार बार कहता रहा कि मैं तुम दोनों का भला चाहता हूं, मेरी बात मान लो, इस दरख्त का फल खा लो, देखना तुम्हें क्या मकाम हासिल होगा। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने कभी झूठ सुना ही नहीं था और ना कभी किसी को अल्लाह की झूठी कसम खाते देखा था, इसलिए वो धोखा खा गए और उस दरख्त का फल खा लिया। बस यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह का हुक्म टूट चुका था। जैसे ही उन्होंने फल खाया, फौरन जन्नत का नूरानी लिबास उनके जिस्मों से गायब हो गया और वो घबरा कर जन्नत के पत्ते से अपने आप को छुपाने लगे। उन पर एकदम शर्मिंदगी छा गई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस तरफ से मना नहीं किया था और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है? दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो कांप उठे और वो बहुत गमगीन हुए कि उनसे क्या गुनाह हो गया, कैसे वो शैतान के फरेब में आ गए। उन्हें समझ न आया कि अल्लाह से मुआफी कैसे मांगे, मगर अल्लाह की करीम जात को उनकी हालत पर रहम आ गया और अल्लाह ताला ने खुद उन्हें एक खास दुआ सिखा दी। ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अगर तू हमें न बख्शे और हम पर रहम न करे तो हम यकीनन खसारे वालों में से होंगे। इस दुआ का मफहूम यही है, तौबा और इस्तिग़फ़ार की पुकार। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और यूं तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम सब आदम की औलाद और शैतान ज़मीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। वहाँ तुम्हें एक मुकर्ररा वक्त के लिए ठहरना है और ज़िंदगी गुजारनी है। हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत से उतार कर इस ज़मीन पर भेज दिया गया। यही वो जगह थी जहाँ उन और उनकी आने वाली नस्लों का इम्तिहान होना था, जहाँ इंसान और शैतान की एक मुसलसल जंग रहनी थी। इस ज़मीन पर वो पहली बार भूख महसूस करने लगे। पहली बार उन्होंने खेती बाड़ी सीखी, रोटी पकाई और इसी मेहनत से पेट भरा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि ज़मीन पर उतरने के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम के पास आए और उनके साथ गंदुम के 7 दाने भी थे। हजरत आदम ने पूछा, ए जिब्राईल, ये क्या चीज़ है? हजरत जिब्राईल ने जवाब दिया, ये इसी दरख्त का फल है जिसके बारे में तुम्हें मना किया गया था, मगर तुमने वो खा लिया था। हजरत आदम ने कहा, अब मैं उन दानों का क्या करूं? हजरत जिब्राईल ने कहा, उन्हें जमीन में बो दो। हजरत आदम ने वो दाने जमीन में बो दिए। ये दाने बहुत वजनी और बड़े थे, आम दानों से कहीं बड़े। कुछ मुद्दत के बाद वो दाने उग उठे। हजरत आदम ने फसल काटी, दाने साफ किए, फिर उन्हें पीसा, आटा गूंधा और रोटी बनाई। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर मेहनत करके खाने का तरीका सीख लिया। इसी तरह हजरत आदम का पहला लिबास भी हजरत जिब्राईल की मदद से तैयार हुआ। वो भी भेड़ की ऊन से बना था। पहले उन्होंने ऊन काटकर धागा बनाया, फिर कपड़ा बनाकर अपने लिए जुब्बा और हजरत हव्वा के लिए कमीज और ओढ़नी तैयार की। यूं जमीन पर इंसानियत का आगाज हुआ। इंसान और शैतान की कहानी शुरू हो गई। एक ऐसी जंग जो आज तक जारी है, जहां शैतान इंसान को धोखा देता, बहकाता और अल्लाह के हुक्म से रोकता है और इंसान अक्सर उसके फरेब में आ जाता है। मगर याद रखो, कामयाब वही है जो गुनाह के फौरन बाद अपने वालिद आदम अलैहिस्सलाम की तरह निदामत के साथ अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल अज़्ज़त बहुत मेहरबान और बख्शने वाली जात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें,
اپنے خیالات کمنٹس میں بتائیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچے۔ ایسے ہی ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل مسلم ڈسٹرکٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز کی اطلاع فوراً آپ تک پہنچے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔